قبضہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ مستقل بنیادوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. ہم نے عارضی طور پر یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے. جس دن یہاں سے کورٹ کمپلیکس بنے گا, یہاں سے شفٹنگ ہوگی, تو ہم یہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے. اب ان کو گرانے کے لیے, اگر انہوں نے گرانے ہی تھے تو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. دوسرا کیا بات تھی کہ آپ نے رات کی تاریکی میں آ کے یہ چیمبر ان کو گرا دیے. کچھ ینگ لاٹ, جب آپ کسی کا نقصان کر دیتے ہیں اور فوری طور پر جب آپ ان کو کہیں لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر مجھے آپ سے بڑا سخت اختلاف ہے اس حوالے سے کہ آپ بھوکلا گردی کہتے ہیں. آپ کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ چونکہ چند لوگوں کی وجہ سے اگر آپ یہ ساری کمیونٹی کو بدنام نہیں کر سکتے اور اس کو کنٹرول کریں اور ود ان نو ٹائم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اگر کوئی مسہیپ ہو گیا تو یہ 2007 سے بڑی تاریخ بنے گی. خواتین حضرات السلام علیکم, میں ہوں محمد سبطین رانا. حاضرین, وکلا کمیونٹی جو کہ معاشرہ میں اپنا ایک کردار رکھتی ہے, اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے, اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں جتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں, دنیا کی تاریخ میں جتنے انقلابات آئے ہیں, ان کا صحرا وکلا کمیونٹی کے سر جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کو بنانے والی شخصیت وکیل تھی, پاکستان کا خواب دیکھنے والی شخصیت وکیل تھی. اور اس کے بعد وکلا نے جوڈیشری کی آزادی کے لیے جو اقدامات کیے, جو کوششیں کی, وہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں. لیکن حاضرین, ہر جگہ پر جہاں پہ کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں وہاں پہ منفی پہلو بھی پائے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا جہاں پہ بہت ہی معتبر پیشہ ہے, وہیں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں اس کمیونٹی کے اندر جو کہ اس کمیونٹی کے وقار کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں. حالیہ اسلام آباد میں ہونے والا جو واقعہ ہے, جس میں وکلا کی طرف سے ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ سامنے آیا, اور اس کے پس پردہ کچھ چیمبرز کی توڑ پھوڑ کا ایشو تھا, اس کو ہم دیکھیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کے کیا محرکات تھے, اور وکلا جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو اس حد تک کیوں جانا پڑا. ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں سردار مصروف خان, جو کہ انصاف لائز فورم اسلام آباد کے صدر بھی ہیں, سینئر وکیل ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو خوش آمدید سردار صاحب. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے کیا محرکات ہیں اور یہ کیوں یہاں تک نوبت پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا موقف لیا. میں کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری سمجھتا ہوں. اسلام آباد جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے یہ 1983 میں بنی. اس وقت جو اس کا ماسٹر پلان تھا اسلام آباد کا, اس میں جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا. عارضی طور پر جب اس جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے یہاں پر ایوب مارکیٹ ایف8 مرکز میں یہ جو مارکیٹ سے یہ سامنے جو دکانیں ہیں یہ کرائے پہ لی گئی ہیں, اور اس میں عدالتیں بنائی گئی ہیں اور ججز کو بٹھایا گیا. اب چونکہ بار اور بینچ چونکہ دو پہیے ہیں, تو دونوں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کا جوڈیشل سسٹم چل سکے. اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وکلا کے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ ہو. عارضی طور پر انتظامیہ نے ہمیں اجازت دی کہ آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ انتظامیہ کی اجازت سے بنا. یہاں پر ہمارے نام پہ میٹر لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ لوگ سارے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی قبضہ کیا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے, بالکل ٹوٹلی ایسی بات نہیں ہے. قبضہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ مستقل بنیادوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. ہم نے عارضی طور پر یہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے. جس دن یہاں سے کورٹ کمپلیکس بنے گا, یہاں سے شفٹنگ ہوگی, تو ہم یہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے. اب ہماری چونکہ تعداد کیپٹل ہے, کیپٹل کی بار ہے, دن بہ دن یہاں پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نوجوان آتے ہیں اس امید کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں پر آ کے ہم باعزت طریقے سے بیٹھیں گے, وکالت کریں گے اور اپنا روزگار کمائیں گے اور اپنا نام پیدا کریں گے. لیکن یہاں کی ایکچوئل جو پوزیشن ہے یہاں پر بڑی ڈیفرنٹ ہے. یہاں آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر چیمبر ان کو نہیں ملتے, بیٹھنے کی جگہ ان کو نہیں ملتی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آئے روز یہاں پر چیمبرز کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. چیمبرز وہ بناتے ہیں, ادارے پیسے لیتے ہیں, ینگ لاٹ کے پاس پیسے ہوتے کوئی نہیں ہیں, تو وہ بھی کورٹ پریمیسز میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بعض اوقات کچھ وکلا کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, لیکن آپ اس ایک چیمبر یا دو چیمبر کا جس کا باقاعدہ آرڈر تھا
सेशन जज का, उसको आप सामने रख के आप 200 चेम्बर आप बिल्डोज कर दें, जिसमें आपकी फाइलें मौजूद हैं, वकला की फाइलें हैं, कीमती डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, सीडीए का मौक़िफ़ ये है कि पहले नोटिस भी दिया गया सीडीए की तरफ से, 2-3-4 दफ़ा नोटिस दिया गया है, तो अब फाइलें क्यों नहीं वकला ने उठाई और फिर क्यों नहीं अपने आप को मैनेज किया, हालांकि वो जानते थे नोटिस के बाद किसी वक्त भी इस तरह का, और फिर हुक्म हो चुका था, आप बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट की तरफ से आर्डर हो गया। पहली बात तो यह है कि किसी तरह को कोई नोटिस नहीं था, बिल्कुल टोटल डिनाई करता हूँ मैं इसको। और जो सेशन जज साहब का जो आर्डर था, वो आर्डर भी ये मिसबार होने के बाद मंजर पे आया जी, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा, और उसमें भी उनको सिर्फ 2 चैम्बर्स की बात की गई थी, जो इलीगल चैम्बर थे उनको उखाड़ने की बात की गई थी। उन्होंने सिर्फ 2 चैम्बर्स की बात थी। ये वो चैम्बर्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन चैम्बर्स को अभी गिराया गया है, 200 चैम्बर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये वो चैम्बर्स थे जो इस्लामाबाद जुडिशरी के नॉलेज में हैं, और उन्होंने बाकायदा इजाजत दी थी इसकी। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ये जो चैम्बर बने हुए हैं, ये विद द परमिशन ऑफ द सीडीए, इंतजामिया और हाई कोर्ट की इजाजत के साथ बने हुए हैं। अब इनको गिराने के लिए, अगर इन्होंने गिराने ही थे तो इनको नोटिस देना चाहिए था। दूसरा, क्या बात थी कि आपने रात की तारीकी में आके ये चैम्बर इनको गिरा दिए, लोगों को ये नहीं देखा कि ये इन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, यहाँ पर फाइलें हैं, कल ये कैसे कोर्ट में अपेयर होंगे। अच्छा, आपकी बात को काटते हुए मैं मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो कुछ भी हुआ सीडीए की तरफ से, ये आपके ख्याल में गलत हुआ और इस तरह से वकला के चैम्बर्स को नहीं गिराना चाहिए था, उनकी फाइलें भी थी। इससे आगे चलते हैं, हाई कोर्ट में जो मामला हुआ, जो पथराव हुआ और जो गालियाँ दी गई, हमारे देखने सुनने में भी ये भी आया कि बहुत नाजेबा कलमात और नाजेबा गालियाँ दी गई चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट को, इदारों को। एक वकला कम्युनिटी को ये किस हद तक जेब देता है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा मामला, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ। इसको बार एसोसिएशन के अंदर ही रह के हल होना चाहिए था, और हमें जाना चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाना चाहिए था। कुछ यंग लॉट, जब आप किसी का नुकसान कर देते हैं और फौरी तौर पर जब आप उनको कहीं लेके जाते हैं तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया होगा, उसमें पूरी 6000 की बार है। आप 5, 10, 100 लोगों की वजह से आप पूरी 5000, 10,000 की बार को आप इस तरह का इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और ये जो मीडिया पे बार बार, मुझे आपसे बड़ा सख्त इख्तिलाफ है इस हवाले से कि आप गुंडागर्दी कहते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि चूँकि चंद लोगों की वजह से अगर आप ये सारी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। और उस वक्त चूँकि किसी का जब नुकसान होता है तो उसकी कोई पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है, उस वक्त उसका गुस्सा था, गम गुस्सा था, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये गलत हो गया। लेकिन ये है कि आप देखें ना, जुडिशरी भी बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ गई है कि भाई तौहीन अदालत का नोटिस आ रहा है, एक FIR इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अलग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अलग हो रही है। आप इसको इमीकेबली, मैं आपके वसातत से गवर्नमेंट से भी ये बात कहता हूँ जी कि खदारा ये छोटा मामला नहीं है, इसको ये अभी कंट्रोल किया जा सकता है, बार एसोसिएशन कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, और इसको कंट्रोल करें और विद इन नो टाइम करें। इसकी वजह यह है कि कल अगर कोई मिसहैप हो गया तो ये 2007 से बड़ी तारीख बनेगी। अच्छा। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। मैं चूँकि एक जिम्मेदार आदमी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इंसाफ राय फोरम इस्लामाबाद का, मैं गवर्नमेंट को भी ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि बजाय इसके कि उस वक्त हम बाहर निकलें और उस वक्त इस इशू को उठाएं जिस वक्त ये हमारे हाथ से निकल चुका हो और हमारे पास सिवाय हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि चंद लोग, और अतर मिल्ला साहब ने भी अभी कहा कि चंद लोग हैं, सारी वकला कम्युनिटी नहीं। सबसे पहले तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि वो उनका ये पैगाम जो है, ये स्टेटमेंट इस मामले को रिकाउंसिलेशन की तरफ लेकर जाएगी। जब चंद लोग हैं, आप नहीं समझते कि सीनियर्स वकला जो लीडरशिप के शौकीन होते हैं, वो आने वाले यंग लायर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह की तहरीकों में यंग लायर्स ज़्यादा होते हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने कुछ मकासद हासिल करते हैं, जिसकी वजह से सारी कम्युनिटी पे सवाल उठता है और दागदार होती है कम्युनिटी। सर, चूँकि सियासत, वकील सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वकील बुनियादी तौर पर सियासी ही होता है और उसको करनी भी चाहिए सियासत, लेकिन वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए सियासत। हमारी चूँकि खुशकिस्मती से हमारी अपनी बार कौंसिल भी मौजूद है, बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बार भी मौजूद है, और मुझे बड़ा यकीन है कि ये हमारी लीडरशिप है, हमने इनको मुंतखब किया हुआ है, ये हमारे मामलात को
हाई ऑफिशियल्स के पास लेके जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब के पास लेके जाएंगे और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि ये मामला हल हो जाएगा। और इस तरह को फ्यूचरली अगर आप इस चीज़ को जब तक इसको रोकेंगे नहीं तो ये कल आपके लिए दोबारा मसाइल पैदा होंगे, कल फिर ये मामला उठेगा चेम्बर्स का। मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि 5 एकड़ का प्लाट वहाँ पड़ा हुआ है बुकला का, उस पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि ये वकील जाके वहाँ पर बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सके, वहाँ बैठ सकें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई हमें ये कहे जी कि आपने फलां चीज़ पे कब्जा किया होगा। हम कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, हम वकील हैं, हम लोगों के मुकदमा लड़ते हैं तो हम अपना मुकदमा भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ लेंगे। शुक्रिया सरदार मसरूफ खान साहब। हाजरीन, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये जो मामला हुआ इसके पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं, कुछ मिस हैंडलिंग है और उसके बाद जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक उम्मीद है, सरदार साहब हमें बता रहे थे कि उम्मीद है कि मामला रिकॉन्सिलेशन की तरफ, मसालियत की तरफ जाएगा, क्योंकि मुकालमा और गुफ्तगू एक ऐसी ताकत है, डायलॉग कम्युनिकेशन एक ऐसी ताकत है कि जिससे बड़ी बड़ी रियासतों के दरमियान जंगें भी ख़त्म होती हैं। और ये तो हमारा अपना मामला है, हम सब लोग इसी मुल्क पाकिस्तान के रहायशी हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इदारों के एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। उम्मीद है कि इस मामले को भी मुकालमे, गुफ्तगू, डायलॉग और बड़ी फ़राख दिली के साथ हल किया जाएगा और मज़ीद मामला ख़राब होने से बचेगा। वकला कम्युनिटी बाइज़्ज़त कम्युनिटी है, जुडिशरी बावकार इदारा है, इंतज़ामिया जो कि इस रियासत की रीढ़ की हड्डी है, ये तमाम इदारे अपनी जगह पर बहुत ही मुकद्दम है, इनकी इज़्ज़त कायम रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ, डायलॉग के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद सिप्तान को इजाज़त दीजिए।